Very good morning, dear student. Once again, welcome back in today's science class after the PT first exam. I hope you everybody write very well in a PT first exam. So now after this PT first, this is our first class, and in this first class, today's class, I'm going to start the new chapter, that is chapter 5th, combustion, flame and fuel. So in this chapter, means the purpose of reading or discussing this chapter, that is what we come to know that what is the combustion, how the combustion is taken place, and what are the necessary things for the combustion. And we also come to know that which type of material is utilized for the combustion, or which type of material is a combustible substance or combustible material. And we also discuss about the fuel, means what is the fuel and what are the different forms of fuel on the basis of physical state. Then we also discuss about the fire extinguisher, the principle of fire extinguisher, how that fire extinguisher is work, and what are the necessary condition to put off the fire, कि क्या necessary condition है जिसके base पे on the basis of that we can control or put off the fire, और कि आग पे control कैसे कर सकते हैं. Then we also discuss about the structure of flame, what are the different regions in a flame, which region is colder, which region is hottest, which region is used by the black smith or gold smith, you can say that. And then discuss about the fuel, what is the fuels and different forms of fuels. And then last we discuss the environmental impacts of the fuels, means कि कौन से टाइप के फ्यूल्स को यूज करने से उसका क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे और प्रकृति पे. सो नाउ विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट दिस फिफ्थ चैप्टर, that is combustion. So first we know we come to know that what is mean by this combustion, कि ये combustion है क्या, ये सबसे पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है. So very necessary to all understand about what combustion. So combustion is nothing but it's a process of burning of a fuel in the presence of oxygen and release light, heat and energy. Means oxygen के presence में जब कोई भी substance burn करता है, जलता है, तो वो हीट रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, लाइट रिलीज करता है. दिस इज कॉल्ड वाटर combustion. So I hope you everybody understood. Combustion means the process in which fuel burn and it produce water, heat, light or energy. So the process of water, the process in which the substance burns to release energy is called water combustion. And this combustion is a water chemical process. Combustion means the process in which fuel burns in the presence of oxygen and produce means the process in which fuel undergoes the burning process, burning in the presence of oxygen and water, energy or heat or light. So this process is called water combustion. And we know that this combustion is a chemical process. This is water, this is a chemical process. ये combustion है, ये chemical process है. Combustion is a chemical process. So now everybody, you see, before discussing more about this combustion, first we should understand about the fuel. What is fuel? So fuel means anything which produce heat or energy or light after burning. यानी कोई भी ऐसा substance जो क्या हो, जो जलने पर, बर्निंग करने पर एनर्जी, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड वाटर फ्यूल. इट मे बी सॉलिड फ्यूल जो है, इट मे बी सॉलिड स्टेट, मे बी इन लिक्विड स्टेट एंड मे बी गैसियस स्टेट. मींस लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी फ्यूल हो सकता है. सो जो सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जो बर्निंग करते हैं, उनको या जलते हैं,
चाहे पेपर हो जाए या फूड हो जाए, हाँ कुछ भी एनीथिंग जस्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, दिस ऑल आर द कंसिडर्ड एज ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न नहीं करते हैं। और दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस जस्ट लाइक स्टोन, आयरन, ग्लास, दिस आर कंसिडर्ड एज ए वाटर एज ए नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल एक तरह से कम्बस्टिबल सब्सटेंस है जो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में हो सकता है। सो नाउ सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62 we began from the starting. The fuel is used to release the energy. We use the many fuels such as the coal, petrol, diesel, LPG, CNG, then PNG, biogas, charcoal, wood. ये सब क्या? These are the source of water energy and it is considered as a water fuel. It may be liquid, gaseous and solid. That another thing. Fuel are used in our daily life to produce water, for the produce energy or heat or light for a different purpose or various activities like cooking food, to running a bike, to run a car, to produce electricity, to generate electricity, or many more things that running automobiles like that. So first this combustion I think is clear. Combustion means the process in which a burning of a substance is taking place in the presence of oxygen. Now the thing is that कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि कम्बशन कभी भी जो होगा दैट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर फॉर वाटर कम्बशन. कि कम्बशन का जो सपोर्टर है वो क्या है? ऑक्सीजन. जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा, कम्बशन उसका नहीं हो सकता. ठीक है. The substance that can burn or undergoes the combustion are called a combustible substance. As I told you that कि जो substance जो combustion होगा जिसका जो जल रहा है जो fuel वो combustible substance होगा just like CNG, LPG, coal, petrol, diesel, paper, wood and charcoal, all these. But जो the substance or material which does not undergoes the combustion process that is called a non-combustible substance. As I told you like that glass, iron rod, stone, these are the non-combustible substances. Examples of non-combustible substances. Then the combustible substances that release sustainably the energy in the form of heat and light commonly called fuels. यानी कोई भी combustible substance जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट दैट इज कॉल्ड वाटर फ्यूल. और फ्यूल जो है वो कैन बी एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. नाउ हियर you everybody can see in your textbook table is given in your textbook at the page number 62. So different forms of the fuels or different examples are given like that solid fuels with charcoal, cow dung, wood, pepper, dung, pig, etc. is given here. Now next we discuss about what are the necessary condition for the combustion. कि combustion के लिए क्या क्या condition है necessary है. So this is condition for combustion. Condition for the combustion. So first the presence of combustible substance. So first thing, what is the necessary condition? The presence of combustible substance or presence of fuel. यानी फ्यूल का होना बहुत जरूरी है, combustible substance का होना जरूरी है. क्योंकि यदि combustible substance ही नहीं है तो हम किसको जलाएंगे? हाँ, आपको combustion किसका करेंगे? combustion अपन करेंगे फ्यूल का. यानी combustible substance का presence होना बहुत जरूरी है. Then presence of supporter of combustion. Second, presence of supporter of combustion. What is here the supporter? Supporter is water. This is oxygen.
कम्बस्टिबल सबस्टेंस होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। सेकेंड थिंग ऑक्सीजन प्रेजेंस होना चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन के सपोर्ट में ही बर्निंग होगी प्रोसेस, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू बर्न एनी फ्यूल और एनी सबस्टेंस, कम्बस्टिबल सबस्टेंस विदाउट ऑक्सीजन। एंड थर्ड थिंग वाटर, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। Means we need to give some minimum range of temperature, minimum amount of temperature, कि कम से कम कुछ temperature उसको अपन we need to give from outside. It may be in form of a small spark or in the form of matchsticks or a lighter, any other these are the source. So कि कम से कम minimum range तक उसको ले जाना पड़ेगा, तभी वो क्या burning process start होगी. So now you see the page number 63 in your textbook. First we discuss about the presence of combustible substances. So please everybody see in your textbook. From the activity described in the let's try, ऊपर एक activity दी हुई है, उसको अपन ना different classify करना है. Okay. So from that the stone, जैसे कुछ stone है या कुछ ऐसा आयरन की वजह से वो क्या वो burning नहीं करेंगे, वो non combustible substance है, और non combustible substances that does not undergoes the water combustion. So a combustible substance is required for the water combustion. यानी combustible substance का यानी fuel का होना बहुत जरूरी है इसके लिए for this combustion. The presence of combustible substances is the first and the foremost condition for the combustion. सबसे necessary, सबसे first जो condition है that is what the presence of combustible substance or the presence of fuel. क्योंकि आप जलाओगे किसको, combustion किसका करेंगे, कुछ चीज कुछ combustible substance या कुछ फ्यूल होगा तभी combustion होगा. So फर्स्ट हमारे पास में क्या होना चाहिए, combustible substance होना चाहिए. सेकेंड थिंग प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर और ऑक्सीजन. व्हाट हैव, काफी टाइम आपने देखा होगा कुछ कैंडल को आप जला के रख देते हैं, उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कम्बशन में जो भी ऑक्सीजन उसके अंदर होती है वो यूज हो जाती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिससे वो बुझ जाता है. तो इससे ये क्लियर होता है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए या कम्बशन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी और अ सपोर्टर ऑफ अ बर्निंग प्रोसेस, ओके, और अ कम्बशन. सो दिस हैपन बिकॉज वी कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द कैंडल. क्योंकि कैंडल के ऊपर अपने जैसे ग्लास रखा तो बाहर से तो कांटेक्ट कट हो गया ऑक्सीजन का, और जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर थी वो यूज हो गई सब बर्निंग प्रोसेस के लिए. बाद में वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा. सो इससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि कम्बशन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है. सो ऑक्सीजन और एयर इज ए सपोर्टर ऑफ कम्बशन. एंड थर्ड थिंग इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. सो फर्स्ट इस सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय दिस इग्निशन टेम्परेचर. ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? Ignition temperature means is a minimum amount or range of temperature which is necessary to start burning or combustion. यानी कम से कम वो टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर या वो रेंज जो बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है या कम्बशन स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. जस्ट लाइक जैसे कम्बशन किया ऑटोमेटिकली हो जाता है, नहीं, उसके लिए मैच स्टिक यूज करते हैं, गैस लाइटर यूज करते हैं, स्पार्क यूज करते हैं, मे बी कैंडल यूज करते हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए. तो वो क्या है, दैट इज वी गिव व्हाट द टेम्परेचर, नेसेसरी टेम्परेचर टू स्टार्ट दैट बर्निंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ दिस कैंडल, मैच स्टिक्स और गैस लाइटर. सो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर विच इज start the burning process or undergo the combustion of the fuel is called ignition temperature. A substance cannot undergo combustion at the temperature lower than its ignition temperature. If the temperature of any substance or any fuel or any combustible substance is lower than that ignition temperature, यानी ignition temperature से यदि कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी combustion नहीं करेगा, वो जलना स्टार्ट नहीं करेगा. उतना आपको एनर्जी देना या हीट देना जरूरी है. इसलिए आप देखते हो कि बरसात के सीजन में नाउ डेज लकड़ियाँ जब गीली हो जाती है तो वो काफ़ी मुश्किल से है ना
जलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। और एलपीजी गैस है या तो काफ़ी छोटे से स्पार्क में एक लाइटर से वो स्टार्ट हो जाता है कम्बशन, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। So let us understand more about the significance of ignition temperature through the illustrations and activity given below here. कि कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम जानते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस इग्निशन टेम्परेचर का क्या इतना बड़ा रोल है या क्या इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है, रोल है। सो मैचस्टिक्स इज रब्ड अगेंस्ट ए मैच बॉक्स और रफ सरफेस टू स्टार्ट बर्निंग। कि आप देखा होगा पेज नंबर 64 पे, सब देखिए आप, एवरीबडी सी इन योर पेज नंबर, इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64, कि आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को बर्न करते हैं तो आप मैच स्टिक है, तो मैच स्टिक को अपन क्या करते हैं, उस बॉक्स से रब करते हैं, जैसे रब करते हैं ना, तो रब करने से क्या होता है, मीन्स फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से इट एक्वायर्ड सम एनर्जी और हीट, सो दैट अमाउंट ऑफ हीट दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इग्निशन टेम्परेचर और मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद ही वो फ्रिक्शन से बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मैच स्टिक्स एंड इट स्टार्ट बर्निंग। ड्राई लीव्स कैच द फायर मोर इजीली देन द फ्रेश लीव्स। जैसे एक तो गीली लीव्स पत्तियां, एक सूखी हुई पत्तियां, तो सूखी हुई पत्तियां जल्दी जल जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो काफ़ी कम है। जैसे मैंने अभी बताया, सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी का, या एलपीजी का, या केरोसिन का, या पेट्रोल का, तो इनके सब इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। ओके, चारकोल इज हीटेड फर्स्ट टू अटेन द इग्निशन टेम्परेचर। चारकोल भी है तो उसको भी पहले गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तब जाके वो स्टार्ट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। Inflammable substance means the substance that undergoes combustion or burning process. सच किसी, जैसे आपने देखा कुछ जो होते हैं काफी जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल, एलपीजी, दिस केरोसिन, डीजल, काफी जल्दी ना कम स्पार्क में जलना स्टार्ट कर जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो काफी धीरे धीरे चलते हैं, जैसे लकड़ियां है, काउडंग है, केक है। सो सम सब्सटेंसेस कैच द फायर और बर्न इजीली Why such substances have the low ignition temperature? इसका रीजन क्या है कि वो जल्दी क्यों जलना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनको काफी कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। They need very less amount of temperature from outside in the form of ignition temperature. But another hand, some just like this wood, charcoal, coal, what it takes some time. Why? First, its ignition temperature is more than this. Fuel like LPG or kerosene and petrol and diesel. So substance which have the low ignition temperature, that is called the inflammable substance or highly inflammable substance. Many times you see on the tanker, जो ना फ्यूल को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनके टैंकर के पीछे लिखा होता है क्लियरली हाईली इंफ्लेमेबल सबस्टेंस, कीप डिस्टेंस। व्हाई इट इज कि वो काफी इन्फ्लेमेबल है, हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तुरंत आग पकड़ लेते हैं, उनसे स्टैंड बना करके दूरी बनाए रखे। तो सबस्टेंस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो इन्फ्लेमेबल सबस्टेंस होंगे, हाईली इन्फ्लेमेबल सबस्टेंस होंगे। जस्ट लाइक एलपीजी, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, ये केरोसिन, ये सब क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल सबस्टेंसेज है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट अलाउ small children to handle the inflammable substances like this LPG, CNG or this all other kitchen appliances by themselves. इसीलिए क्या कहते हैं कि रसोई में या किचन में ऐसे LPG सिलेंडर वो बच्चों के पहुंच से दूर होना चाहिए। ओके, so then we discuss about what the different types of combustion. What are the main types or various types of combustion? There are different 4 types of combustion. Rapid combustion, first one is a rapid combustion, then a spontaneous combustion.
spontaneous combustion. Then the third one, slow combustion or explosion. So there are the different four types of main types of combustion. First one, so these are the depending on the way and the rate at which the substance undergoes the burning combustion is classified into four different categories. But in your textbook there are mentioned only three. Slow combustion जो है वो आपके यहाँ मेंशन नहीं है, तीन ही सिर्फ मेंशन किए हुए, लेकिन फोर्थ भी हम ना डिस्कस कर लेंगे. सो फर्स्ट रैपिड combustion. रैपिड combustion मीन्स जस्ट लाइक कुछ ऐसे हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जो होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया अभी, जैसे CNG है, LPG है, तो ये क्या है काफ़ी जल्दी फटाक से आग पकड़ लेते हैं. तो उस टाइप की कंबशन को अपन क्या कहेंगे, रैपिड कंबशन. सॉरी, द गैस इमीडिएटली स्टार्ट बर्निंग एंड a lot of heat and light is evolved. This is a rapid combustion. Hence, a rapid combustion is a type of combustion that takes place at very high speed or very high rate. यानी काफी फास्ट, काफी स्पीड से, काफी हाई रेट पे कंबशन होता है. एंड विद द इवोल्यूशंस ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड हीट, दैट टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड व्हाट, रैपिड कंबशन. Burning of fuels such as kerosene, petrol, diesel, LPG, CNG, biogas, this all are the undergoes this rapid combustion. और ये examples है कुछ ऐसे fuels के which undergoes this rapid combustion. Spontaneous combustion, second type. Some substances or the material catch fire on their own, just like sodium and this potassium. So वो अपने आप से खुद से ही ऑटोमेटिकली अपना आप से ही जो है क्या बर्निंग करना, कंबशन करना स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर. यानी वाइट फॉस्फोरस को आप रूम में ऐसे ही ला के रख दोगे, या फिर जैसे वाइट फॉस्फोरस लाया और आपने रखा, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जैसे एयर के कॉन्टेक्ट में आया, स्टार्ट बर्निंग, इट स्टार्ट टू बर्न. यानी इसका कंबशन ऑटोमेटिकली एयर के कांटेक्ट में आने से ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर के अराउंड ही है, अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मली रूम पे इतना टेम्परेचर होता है. यानी उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है. फॉर दिस रीजंस, एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, द वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर. उसी के कारण वाइट फॉस्फोरस को कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, वाटर में. Such substances are to undergo the spontaneous combustion. और ऐसे जो substances होते हैं, वाइट फॉस्फोरस है या सोडियम है, तो उनको स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं. और इनको या तो फिर वाइट फॉस्फोरस को अपन वाटर में स्टोर करते हैं, या फिर सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं. देन फॉरेस्ट फायर इज इन समर आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. कि गर्मी के टाइम में भी फॉरेस्ट फायर, वो भी ऑटोमेटिकली फायर वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. तो वो भी एक तरह से एक एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस फायर का, क्योंकि एक बार वो बर्निंग स्टार्ट होकर पूरे जंगल में फैल जाती है. एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन इज ए टाइप ऑफ कंबशन इन विच a very large amount of heat or light is released with the bursting sound with the evolution of gases. यानी कि एक साउंड के साथ में लाइट और हीट रिलीज होती है. जैसे अपन फायर क्रैकर्स जलाते दीपावली में या किसी भी ओकेजन पे, तो दैट इज अ टाइप ऑफ वाटर दिस एक्सप्लोजन. ठीक है, एक्सप्लोजन का वो टाइप है जिसमें हीट और लाइट भी रिलीज होती है और साथ साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होता है विद रिलीज ऑफ डिफरेंट गैसेज. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए फायर क्रैकर इज लाइट, it bursts with explosions and releasing the gas, light, heat and sound. And third one is what, the slow combustion. Slow combustion means it's a type of combustion that takes too much time, जो काफी धीरे धीरे होता है, जो आपको दिखता भी नहीं है, लेकिन काफी समय के बाद उसके इफेक्ट अपन देख पाते. जस्ट लाइक रस्टिंग. रस्टिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ वाटर, टाइप ऑफ कंबशन जो काफी स्लो है, काफी धीरे 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 होता है. क्योंकि रस्टिंग एक दिन में नहीं होता या 2 दिन में नहीं होता है, इट्स टेक्स टाइम. उसके लिए सप्ताह भर या वीक या महीना जब
एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट, तब जाकर उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, हाँ, जिसको अपन रस्ट कहते हैं। तो वो रस्टिंग जो है, दैट रस्टिंग इज ए कॉल्ड अ टाइप ऑफ वाटर स्लो कंबशन। सो dear student, this is all about the today's class. We discuss about the different types of combustion. First we discuss about the combustion, then fuel, different forms of fuels, then condition necessary for water combustion, and then we discuss about the inflammable substances or combustible and the non-combustible substances. So I hope you have already enjoyed today's class. In the previous class we discussed about the principle of fire extinguishers, how we can put off or control over the fire, and some different topic like flame and the reason of flame. So that we discuss later on coming class. Thank you. Have a nice day.